the exercise that we were doing is, okay, what if the marginalized groups that we're looking at, what if they had the same socioeconomic status distribution as the higher caste Hindus' socioeconomic distribution? Then, if we have them at the same level, what would their life expectancy then look like? And what we find is that these socioeconomic differences account for less than half of the gap between Dalits, Muslims, and Adivasis and higher caste Hindus. And so, we can't know for sure what is driving the other half. But the oppressed status of these groups, the exploitation they face, the discrimination that they face, is likely some part of it, although that's very difficult to quantify exactly. लाइट्स कैमरा आज़ादी एक ऐसा शो है जो हस्तियों को ढूंढ रहा है। ये वो हस्तियां हैं जिनने हमेशा समाज को चुनौती दी है। ये वो लोग हैं जो हमेशा निडर, आत्मविश्वासी और अग्रिम रहे हैं। भले ही जनता ने कभी इन्हें सराहा ना हो, मगर इन्होंने हमेशा देश के लिए काम किया है। हम इनसे बात करके इनका नज़रिया समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये लोग समाज को कैसे देखते हैं, और ये सीखना चाहते हैं कि ज़िंदगी को बिना डरे कैसे जिया जाए। मेरा नाम है वंदित जैन और मैं इन कहानियों को आप तक लाने का बस एक माध्यम हूँ। Hi everyone. This journey of bringing voices who challenge the status quo has been going on since Feb 20. While I've enjoyed every bit of it, the truth is I haven't made much money out of this effort. Here is what I propose. For an episode that you like, that touches your heart in some manner, you make the single minimum contribution that you can to the show. If you like my proposition, please head on to lightscameraazadi.in/support-lca and make a donation that is convenient to you. Thank you. Hey everyone, welcome to another episode of Lights Camera Azadi, a very special episode. Aashish and Payal are researchers who are based out of US, and I was introduced to them by our very own Aditi Priya, who is the founder of Bahujan Economics, a fantastic initiative which you should definitely check out. तो शुरुआत ऐसे होती है कि हमारा डिस्कशन अदिति के साथ चल रहा है टू गेट हर ऑन द शो, एंड फ्रॉम देयर द डिस्कशन मूव्स टू हैविंग अ बिगर पैनल विद अदिति होस्टिंग इट. सो इट्स अ डबल ट्रीट फॉर द ऑडियंस. तो आशीष एंड पायल ने बहुत ही अमेजिंग पेपर्स पब्लिश करे हैं. आई हैव लिंक्ड ऑल ऑफ इट फ्रॉम द शो नोट्स एंड आई विल रिकमेंड यू ऑल टू गो थ्रू इट. हमारा टॉपिक जो है वो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे है, स्पेसिफिकली दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज पे. इट इज वेरी क्रिटिकल टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट बिकॉज इट इज वेरी आई ओपनिंग, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिसर्च इन इंडिया. यूएस में आपको ऐसी काफी रिसर्च मिल जाएंगी कंपेयरिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मोर्टेलिटी रेट बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, बट इंडिया में इट इज न्यू एंड जस्ट द बिगिनिंग. तो ये काफी इंटरेस्टिंग है. So we start the show by understanding Aashish and Payal's journey and their other areas of research, and from there we slowly get into the topic of the day. Aditi hosts this episode alongside me and adds her input whenever she feels like. So ये बहुत ही अच्छी interesting conversation जो है वो develop हो जाती है. I think you guys will really enjoy getting into this episode because it's very academically sound as well. So yes, without wasting any time, let us go and meet these amazing folks. 3, 2, 1. पायल, आशीष और अदिति, लाइट्स कैमरा आज़ादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू वंदित हमारे साथ ये बात करने के लिए. हम भी वी आर आल्सो वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू. थैंक यू आशीष. एंड जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बता दूं कि अदिति, हु इज द फाउंडर ऑफ बहुजन इकोनॉमिक्स, इज डिसाइडेड टू co-host this with me. So today मैं थोड़ा सा step back लूँगा and Aditi will be leading this conversation more. And let's say I'm very excited to start and have this conversation. Aashish and Payal have done some fantastic research in the areas of health and discrimination. And आज हमारा objective है to get more, dig deep and try to understand their findings. Before we get into all the serious discussion, folks, I want to understand your life journey and what's your life narrative like. Typically we give some time, and I typically give some time to my guests to express themselves, essentially where they come from, what is their life story like, and what chain of events led them to where they are today. So if Payal, I'll start with Payal and then I'll go to Aashish. अगर आप बात कर सकते हैं कि what has been your life story like, that will be very great for the listeners also to know. Okay, sounds good. Thank you, Vandit, for having me on this program. Very excited to be here. I guess I grew up in the US,
but most of my family is in India, and so growing up, I would go every few years to visit my grandparents, aunts and uncles. But I knew pretty early on that I wanted to, find a way to live and work in India on my own terms, sort of without, having my family shape my experiences. And so after finishing college in 2005, I finally was able to come to India just on my own to work. I worked with various organizations, all of them really focused on health was sort of where my interest was even then. And then I went back to the US for a few years to do my master's degree. And then in 2013, I came back to India with a focus on sanitation, and that's sort of where I found my way to r.i.c.e. And with r.i.c.e, we're like a very small team. We all work on health and well-being in rural India. And across many of the things that we studied, things like open defecation, maternal nutrition, other topics. Also, we ran into this fact of social inequality and how health is really shaped and impacted by these inequalities. And that's sort of also where my research today still is focused on this sort of general kind of area. Yeah, and Payal, I had this one question in mind that since you were, your life story has been shaped in US. When do you realize about the caste inequalities of India, and how does this topic becomes an interest for you? I think as a young person going to India, it was always we don't have people working for us in the US. And in India, our families do have people who come and, clean the house and do the dishes and these types of things. And so it was always sort of like a question, but nobody, of course, talks about that in our family, at least. Like, it was not explained to me what this all was, but it was always sort of a question. And so I think, again, when I finally went to India on my own, I think it's very quickly then clear once you start asking questions and people actually are willing to talk to you about what's going on. I think that's sort of those early days, I think, is when it began to be clear to me that this is what was happening. And then really at r.i.c.e was sort of when it became an actual like research interest to pursue thinking more systematically about these questions. And Payal, if you could sum up though the papers that you have written lately, especially specifically on this topic for the audience, that would be very great. Summarize the papers that I've written. So, I mean, I think it started at r.i.c.e, at least it started with thinking about open defecation. And why does India have such high rates of open defecation? And we sort of have quantitative work and qualitative work that kind of tries to excavate what is happening and why India is so particular in this regard. And we talk a lot about how issues of untouchability and people sort of equating cleaning a latrine, and so not because cleaning latrines is sort of seen as the work of low caste people, Dalits, then other people in the rural areas don't want to use these latrines. And so that's kind of the first big piece of research that we did at r.i.c.e that was focused on caste. I was also part of a project with other colleagues of ours on this survey of social inequality that we did over the phone that was really trying to understand people's attitudes towards marginalized communities, social attitudes across, different social policies that are in India. I've also was sort of interested. We had done some work in hospitals in UP, and so I became interested in hygiene issues in hospitals, particularly in maternity wards, and so did some qualitative work with cleaners in hospitals in particular, trying to understand their role and the how caste
influences hygiene in the healthcare setting. And then, of course, this last, most recent work with Aashish and our other co-author Sangeeta on life expectancy disparities between social groups. Great. Thanks so much, Payal. Ashish, I'm gonna move to you. अब can you tell me अगर आपने थोड़ी सी life story बता सकते हैं? How did Harvard and Penn and all of these happen? या नो आई वांट ऑल्सो वांट टू से कि पायल को मैं 8 साल से जानता हूँ, और पायल ने जो जवाब दिया कि उसको कास्ट के बारे में कैसे पता चला, वो मुझे भी नहीं पता था. सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग. थैंक्स फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. तो मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, और मेरी शुरू में पढ़ाई दिल्ली के आसपास नोएडा और फरीदाबाद में हुई. और उसके बाद उसके बाद मैं चेन्नई में पढ़ा कॉलेज के लिए, और वहाँ पे मुझे लगता है दिस इज़ वेयर आई थिंक मतलब चेन्नई में सबसे मेरा सबसे फेवरेट शहर है इंडिया में, मोस्टली बिकॉज आई थिंक आई बिकेम अ फुल पर्सन देयर. आई डिस्कवर्ड व्हाट आई रियली was like and wanted to be in the city. हालांकि मुझे तमिल बोलना अभी भी बहुत कम आता है. और कॉलेज में तो मैंने बहुत गांव में फील्ड वर्क किया, खासकर रूरल नॉर्थ इंडिया में, तो झारखंड में और बिहार में और उसके बाद यूपी में, और मैं अभी भी वो करता रहता हूँ. और उससे मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो मेरे रिसर्च में क्या सवाल हैं या फिर क्या मुझे इंटरेस्टिंग लगता है वो आता है. मेरा अपब्रिंगिंग बहुत प्रिविलेज्ड, जिसे कहेंगे मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग है. तो मम्मी पापा के पास जितने पैसे होते थे वो सब उन्होंने हमारी पढ़ाई लिखाई में लगा दिए, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को मिल पाता है. क्योंकि लोगों के पास पढ़ाई जब वो करना चाहते हैं तो इतनी अड़चन आती है. और दूसरी बात ये है कि लोगों के पास पैसे भी बहुत कम होते हैं. तो उदाहरण के लिए मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मेरी मम्मी 12वीं तक पढ़ी हैं और वो कॉलेज पढ़ना चाहती थी, और उनके भाई लोग जो बड़े थे उन्होंने उनको पढ़ने नहीं दिया. उनको क्या ज़रूरत है कॉलेज जाने की, कौन कॉलेज जाता है. हाँ, और उनको अभी तक लगता है, तो उन्होंने हमारे लिए कहा कि मेरे को तो पढ़ने नहीं दिया, तुम तो पढ़ लो शुरू में. और हालांकि वो 12वीं तक पढ़ी हैं, और उस जमाने में भी 12वीं तक पढ़ना भी एक बहुत ज़्यादातर लोग 12वीं तक नहीं पढ़ पाते थे तब भी और आज भी. तो कॉलेज में जब मैं पहली बार जब मुझे पता चला कि हाँ जेंडर इनइक्वालिटी इम्पोर्टेंट है या कास्ट इनइक्वालिटी इम्पोर्टेंट है, और उस समय पता चला, तो अपनी ज़िंदगी में भी देखने का, अपनी खुद की ज़िंदगी में या परिवार की ज़िंदगी में भी देखा उसको, और समाज में भी देखा, शहर में भी, गांव में भी. और उससे थोड़ा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खुद को ये लगा कि हमें अपना खुद का देश या खुद का समाज नहीं समझ में आता है. हम जो सोचते हैं वो कई तरह से गलत है. तो उसके बाद एक जर्नी हुई कि हाँ चलो पढ़ते हैं, चलो गांव में काम करेंगे, थोड़ा सीखेंगे. फिर मेरा इंटरेस्ट ये था कि मुझे लगता था कि फील्ड वर्क से हमारे देश को समझा जा सकता है, और कुछ हद तक डेटा से हमारे समाज को समझा जा सकता है. तो मेरे दोनों में रुचि थी, और इसलिए फिर मैंने डेमोग्राफी में PhD करी, जो मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल है. क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखें कि रिसर्च में क्या एम्फेसिस है, तो उसमें हमारे समाज को क्वांटिटेटिवली समझना, या जो साइंटिफिक डेटा जो हमारे समाज के बारे में बता रहा है, उससे हमारे समाज की क्या लाइक द हाउ आवर सोसाइटी इज, द जो हमारा समाज है उसे क्या निकल के आता है, वो काफ़ी ज़रूरी है, और वो काफ़ी विद इन इंडिया निगलेक्टेड है, मुझे ऐसा लगता है. या तो लोगों की काफ़ी रुचि है क्वालिटेटिव काम करने में, और उससे हमें बहुत समझ में आता है, या फिर लोगों की बहुत रुचि है कि इस पर काम करें कि सरकार के साथ मिलकर ये इंटरवेंशन करें,
और उससे क्या बदलाव आया उस पे ध्यान दें। मगर जो हमारा समाज इस समय है, जो डेटा दिखाता है, उस पे बहुत कम लोग काम करते हैं मेरे हिसाब से। तो उस पे मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। And then I really do feel that it's a neglected topic within the study of Indian society. और उससे ये इंटरेस्ट हुआ कि जैसे कि उदाहरण के लिए इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, या दलित, आदिवासी या दूसरे जो शोषित जो शोषित समाज के लोग हैं, उन उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनके कितनी है, और जो प्रिविलेज लोग हैं उनकी तुलना में उनकी कितनी कम है। ये मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि बाकी लोगों ने ये सवाल नहीं पूछा, और मुझे लगता है ये इसलिए नहीं पूछा क्योंकि एक तो ट्रेनिंग नहीं थी लोगों के पास, और दूसरा कि ये दिस डजंट कम अप in how people think about what research to do, and I think that's unfortunate, uh, and hopefully that will change. तो आशीष, एक सवाल था कि यू नो आपके लिए सॉर्ट ऑफ इट्स आल्सो अ जर्नी, राइट? एक लर्निंग जर्नी होती है, इट्स आल्सो एन एक्सपीरियंस, यू अनलर्न लॉट ऑफ थिंग्स। एंड सिंस आपकी एजुकेशन इंडिया में, तो हो सकता है रियलिटी से आप काफी क्लोज रहे हो, बट स्टिल हैविंग सेड दैट, इंडियन रियलिटी इज दैट एज दे से मल्टी डायमेंशनल है, बहुत कुछ है, यू लर्न एवरीथिंग एज यू एक्सप्लोर इट। तो कैन यू टेल एक दो इंसिडेंट ऐसे आप बता सकते हो, एक दो लर्निंग्स बता सकते हो फ्रॉम योर फील्ड वर्क that really changed your perspective specifically about this issue, that maybe not there earlier? हाँ, उदाहरण के आई मीन हाँ, तो उदाहरण के लिए मतलब एक बात मैं ये कहूँगा कि दिल्ली से झारखंड का या दिल्ली से बिहार के गांव का डिस्टेंस कई बार उतना ही हो जाता है जितना शायद यूएस से बिहार के गांव का डिस्टेंस है, क्योंकि दिल्ली के, और इनफैक्ट कई बार ज़्यादा हो जाता है कि कई बार हमें दिल्ली जो जैसे मेरी परवरिश दिल्ली की है, तो हमें लगता है कि हमें अपना देश समझ में आता है, जबकि ऐसा है नहीं। ये मैंने सीखा जब मैं पहली बार, एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ कि एक बार जब मैं पहली बार फील्ड वर्क कर रहा था, तो हम एक गांव में थे, और गांव में हम फील्ड वर्क कर रहे थे, तो किसी को यू हैव टू फाइंड समवन टू फीड अस, सो बेसिकली वी आस्क्ड मल्टीपल फैमिलीज टू फीड अस। तो उन्होंने पूछा कि हाँ, तो हम 4 लोगों का ग्रुप था, और वो अपर कास्ट महिला थी, जिनसे हमने पूछा। हमने इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था कि हम किससे पूछेंगे, लेकिन हमने एक महिला से पूछा। तो हमारे साथ एक व्यक्ति था, साद, वो मुंबई से थे, और तो साद को ये पता था कि इनको नहीं बताना है कि हम मेरा नाम साद है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि हमें नहीं बताना चाहिए कि इनका नाम साद है। तो पहले हम तीनों ने अपना नाम बताया, और साद चुप रह गया कि उन्होंने नाम नहीं बताया। हाँ, और फिर बाद में पूरे हमने खाना खा लिया उनके साथ, हमने उनको थोड़े से पैसे दे दिए हमारे लिए खाना बनाने के लिए, और बहुत अच्छा हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, आप लोगों की जाति कौन सी है? तो हमारे साथ एक और व्यक्ति थी, वो कश्मीर से थे, और वो कश्मीरी ब्राह्मण थी। तो उन्होंने जो महिला थी, उन्होंने उसके पैर छुए, जो कि हमें बहुत बुरा लगा कि कोई गांव में जिन्होंने हमें खाना खिलाया, उनको ऐसा लगता है कि इस बेसिकली 20 साल की लड़की के पैर छूने चाहिए। एंड उससे मुझे काफ़ी ये समझ में आया कि हमें लगता है कि ये इशू चला गया है, जबकि कास्ट इतना ज़्यादा है कि एक ऐसी महिला जो पूरा घर संभालती है, उनको एक 20 साल की लड़की के पैर छूने का मन करता है, एंड सो ऑन। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। एक बार हम बिहार के गांव में गए थे, और हम बोल रहे थे कि चलो नरेगा का जॉब कार्ड बना लेंगे। तो मैंने किसी को बोला कि अच्छा, हम वहाँ नदी के पार हैं सब लोग, वहाँ पे हमारे पास फॉर्म पड़े हुए हैं, वहाँ हम जॉब कार्ड बना रहे हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा, अब ये दिन आ गए कि हमें जॉब कार्ड बनाने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा, जो कि बेसिकली वहाँ पे मुस्लिम लोग रहते थे उस टोले में। तो इससे ये समझ में आया कि हमारे समाज में
कई सारी असमानताएं हैं, और ये सर मैं ये 2 इंस्टेंस गाँव के हैं, बट ये शहर में भी बहुत हमें दिखता है, हमारे घरों में ही बहुत दिखता है। हाँ, थैंक्स। और आर यू एबल टू, मतलब आप जब अपना काम बताते हैं टू योर अकेडमिया, तो शायद बहुत अच्छे से शायद समझता होगा, अप्रिशिएट करता होगा। जब आपके फ्रेंड्स जो शायद अकेडमिया से रिलेटेड ना हो, तो जब आप उनको बताने का ट्राई करते हैं, तो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू योर वर्क? ये अच्छा सवाल है। तो ये तो एक ये कमी है कि हम एकेडेमिया में हम अपना, जैसे मेरे जैसे लोग एकेडेमिया में अपना काम डिस्कस करने में थोड़े कंफर्टेबल हैं, मगर अपने घर में या अपने दोस्तों के संग जिनकी हमारी परवरिश है, उनके साथ डिस्कस करने में इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो एक उदाहरण देता हूँ। तो मैंने बताया कि अच्छा ठीक है, हमने मोर्टालिटी पे काम किया और ये पाया कि दलित लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। हाँ, और एक और काम किया, ये पाया कि अमीर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। तो मेरा एक दोस्त था, उसने बोला, अरे तुम क्या काम करते हो, ये तो स्टीव जॉब्स को देखो, वो तो इतनी जल्दी मर गया। तो ऐसा तो उसने एक उदाहरण दिया कि कि देखो, एक उदाहरण ये है मेरे पास, जो अमीर व्यक्ति था जो मर गया जल्दी। और फिर उसको कन्विंस करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया, क्योंकि उसके पास एक उदाहरण था। तो मुझे लगता है, जबकि मैं ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी मुश्किल है अपने उन लोगों से बात कर पाना, जो मतलब मुझे थोड़ी मुश्किल होती है इसमें उन लोगों से बात कर पाना जिनके साथ हम पले बड़े। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह से मेरी परवरिश थी, उन्हीं तरह से उन्हीं की परवरिश थी, तो अगर हमें समझ में आ सकता है तो उनको भी कभी समझ में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें उन लोगों पर गिव अप कर देना चाहिए। Payal, do you also face some challenges explaining your work to your peers and friends? Yeah, I think what Ashish is saying is correct, that there's like these professional circles in which it's understandable what we are doing, that we look at data, that we um, go and talk to people to try to understand what is happening. But yeah, with friends and family, I think it's always, people are like, oh, you're doing social work, because that's like the only thing that people can understand, rather than like this frame of that you would go and ask people and try to that we have something to understand, that there's so much that we don't know, that we need to go and speak with people and try to understand the different experiences, like our position of privilege. I feel like it sort of makes it seem as if we are the ones who are helping people. Like that's the only way that some of my family and friends like understand what I'm doing. Where it's like, no, that's not. I mean, you can't. It's not one directional like that. That as if I have something to offer. It's actually I'm the one, trying to understand what's happening. There's, I'm going and doing field work because I don't understand. We don't understand so much, and there's a lot to learn. Like what Ashish was talking about this assumption that like, oh, caste doesn't exist anymore, and India is, economically progressing, and so everything is great. But so I do think that it's hard to have these conversations sometimes with the close people that in our families and friend circles, but maybe perhaps more important to be trying to continue trying to make sure that people understand what we're doing and what we're saying. And is there like one or two incident that you can tell us, like Ashish did, which sort of which was important for you, also was a very strong learning experience for you as well from your fieldwork? Yeah, I mean, I think one of the earliest experiences for me was that when I went after college, the first time I came to India, I was volunteering a little bit with this
NGO in Udaipur, and one of the other, their staff member, and I had gone into a rural area. This was, you know, kind of maybe 2-3 hours outside of Udaipur. And we had stayed the night in the village, and I guess sort of similar to Ashish's story, like we were looking for a place to stay. She knew the person that we should stay with, and so we stayed in their home. And it was very hot, so we had like a cot outside, and but I the level of I my Hindi was not so great, so I was speaking a little bit in English also at that point, and so I think there was just like the level of like over respect that I was receiving was very disconcerting to me, and like I didn't really understand why. But then we, she was asking about what is your caste and this is my caste, and it was just to me, very uncomfortable. For them, I think it was sort of like a normal conversation that you just have and you ask these questions and it's fine. But to me, it was, I don't know, it became clear that like, oh, this is something that, actually matters in how she's interacting with me, and how I got treated. And then sort of, once these things come in front of you, I think then you start seeing it everywhere also, like I like Ashish was saying, it's not something I was paying attention to initially, but then I was able to sort of see even interactions among other people, and how this these questions of like, who are you, become very important, and that's like it's a question that gets asked almost immediately before any other interaction happens. Like, what's your last name? Where do you live? Where does your family live? What does your family do? These questions, I think I didn't really understand what they were about before, and then that sort of few months of field work for me made me understand that, okay, this is something very, very important here. Yeah. Thanks, Payal. And Ashish, if you can quickly summarize your research and what have you been up to lately, and is there also are there any papers that are in progress? Yeah, no, thanks for asking this. तो जैसे कि पायल ने बताया, एक पेपर, दो पेपर इस पर हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो एक सूचक आंक है मोर्टालिटी का या मृत्यु दर का, वो कितना है भारत में अलग 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 समुदायों में। और तो उसमें हम दलित, आदिवासी, मुस्लिम, पिछड़े या ओबीसी और हाई कास्ट या ऊंची जाति के लोग, कहने को ऊंची जाति के लोग, उनका उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख रहे हैं। तो हमारे पास इसके लिए दो डेटा सोर्स हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि 1998 से 2000, और फिर 2013 से 2016 में हुआ था। अभी नया जो 2019 और 21 का है वो आया है, तो उसका अभी हमने डेटा, वो कल ही आया, तो उसका हमने अभी डेटा देखा नहीं है। एक इससे जुड़ा काम है कि जिस तरह से भारत में काफ़ी असमानता जाति और धर्म की हैं, उसी तरह काफ़ी असमानताएं वर्ग की हैं, क्लास की हैं। तो एक पेपर इकोनॉमिक क्लास से है, कि अगर आपके पास कितनी इनकम है, वो उसका क्या असर है। और मेरे ख्याल से जब भी हम बात करते हैं कि जाति में ये असमानता है, तो सामने से ये आता है कि अच्छा, ये तो केवल इकोनॉमिक डिफरेंसेस की, क्योंकि जो शोषित वर्ग हैं वो गरीब भी हैं,
तो ये तो केवल उसकी वजह से है। तो हमने कोशिश करी है ये देखने की कि ये कितना आर्थिक है और कितना सामाजिक है। और उस रिसर्च में हमें ये नज़र आता है कि ये ज़्यादातर सामाजिक है। जो सामाजिक जो फ़र्क है उसको आर्थिक फ़र्क ज़्यादा समझा नहीं पाता है। आर्थिक फ़र्क है, वो अपनी जगह है, और सामाजिक फ़र्क अपनी जगह है एक तरह से। और दूसरी बात ये भी है कि जब हम ये काम करते हैं हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक्चुअली आर्थिक फ़र्क इसलिए है क्योंकि सामाजिक फ़र्क है। क्योंकि अगर किसी दलित व्यक्ति को जैसे अगर आप ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ें, तो उदाहरण के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल जाते हैं जब बचपन में, तो सामने तो लोग उनको हमेशा बोलते हैं कि बड़े होके क्या है, पढ़ के क्या आईएएस बनेगा, राइट? सो दिस इज कॉमन। ये कई सारे ऐसे रिटॉर्ट होते हैं, कई सारे ऐसे लोगों को पढ़ने के लिए अड़चने क्रिएट किए जाते हैं। um, um, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम आर्थिक स्थिति कितनी है उसको आर्थिक स्थिति कितना एक्सप्लेन कर सकता है सामाजिक फर्क को, तो हम जब उसको देख रहे हैं तो हम ये देखें कि आर्थिक स्थिति खुद सामाजिक असमानता या भेदभाव के कारण इस तरह है। Like economic differences themselves are because of caste discrimination, right? सो ये इस पर थोड़ा काम कर रहे हैं। एक मुद्दा जो हमने अभी तक इतने अच्छे से नहीं करा है वो ये है कि अलग अलग धर्मों में भी जाति की असमानता है। और अगर हम हिंदू, मुस्लिम, बाकी धर्मों में कितनी जाति की असमानता है और उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ़र्क कितना है, वो हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं समझने का। उसमें परेशानी ये आती है कि एक्चुअली जब हमारे पास डेटा काफ़ी कम हो जाता है कि हर एक धर्म, हर एक जाति, तो उसमें एस्टिमेशन करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा पहले का काम मेरा जो सामाजिक सुरक्षा के प्रोग्राम्स हैं उस पर है। पायल के साथ थोड़ा बहुत सैनिटेशन पर है। और कुछ काम एयर पोल्यूशन पर है, खासकर जो चूल्हे के कारण होता है, चूल्हे पे खाना बनाना या पानी गर्म करने के कारण होता है, उस पर। थैंक्स आशीष। थैंक यू फॉर दिस वंदित। ये तो बहुत ही बढ़िया एक अभी आधे घंटे का चला, जो कि हम इन दोनों को इतने टाइम से जानते हैं, पर इतनी कहानियाँ सुनने को मिली, बहुत मज़ा आया। मेरा एक्चुअली 2 सवाल था इससे जुड़ा हुआ, दोनों थोड़े डिफरेंट है। एक तो पायल और आशीष, आप दोनों का सैनिटेशन पे काम है, और अभी आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे काम है, और फिर आप कास्ट के बारे में भी बात कर रहे थे। तो हम थोड़ा डिटेल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाले पेपर में बात करेंगे, पर उसके पहले हम ये समझना चाहते थे कि आपकी प्रीवियस रिसर्च से सैनिटेशन के वर्क को लेके आप कुछ उसको अगर समराइज़ कर पाते, और दूसरा कि क्या आपको लगता है कि वो किसी तरीके से आपके ये अभी वाले रिसर्च से कनेक्टेड है? And do you see, I mean, obviously it has not been shown in the paper, but do you anticipate any connection between these two, or how things play out? And the second question was a bit different. I just wanted to understand, you were sharing about instances where you saw caste in practice in the field, but that was not. I mean, that was just a form in which caste appeared, like it was appearance of caste. I wanted to understand that what made you realize कि this presence of caste is also going to be there when we look at the indicators, when we look at some of these questions, research questions. तो उसको फिर आप कैसे समझे? क्योंकि कास्ट तो है, वो समझ आ गया, लोग पहले तो डिनाई करते हैं कि है ही नहीं, पर फिर वो फील्ड वर्क में पता चलता है कि हाँ नहीं, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, तो वो तो होगा, पर उसके होने से ज़रूरी नहीं है ना कि वो हमारे इन इंडिकेटर्स में, सोशल वेलबींग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो वो आपको फिर कैसे समझ आया? ये 2 क्वेश्चन है, बोथ ऑफ यू कैन टेक बोथ द क्वेश्चन। I can start with the first question.
Just to talk a little bit more about the findings in terms of open defecation, right? That was the first one. So I think, you know, the main thing that we found was that India's, high rates of open defecation are, related to these rigid and these rules of purity and pollution that are sort of based in the caste system, and that influences how some people behave. So people don't want to use pit latrines because of associations with Dalits manually cleaning latrines. So rural people, equate manual pit emptying with scavenging, other sort of degrading forms of labor that are traditionally done by Dalits. And so what this does is it pushes people to openly defecate or otherwise build very, very expensive latrines with septic tanks, and that they feel that then those sort of never have to be cleaned, or in their minds feels like it doesn't ever have to be cleaned. But these are things that most people cannot afford. And so this open defecation that is really what people end up doing, it's making kids in particular very sick, because an individual's open defecation, of course, has an impact on, everyone who is in the area. And even in places in rural India, there's very high population density. And so open defecation really is a source of poor health. And the government continues to build these latrines that people don't want to use, and then they're built sort of poorly. Like the construction is not well done, it's not completed, and so there's a way to use these twin pit latrines that they don't need to be emptied until they're dried, and so you could sort of separate it from actually cleaning. It doesn't have to be so dirty to be cleaning like actual feces, but because the latrines are poorly constructed, that's sort of not how it ends up happening. And so, in the end, what we've found, or what we sort of hope that will happen, is that there just needs to be much more emphasis put on addressing untouchability and casteist notions of purity and pollution, enforcing the law against manual scavenging, encouraging people to clean their own latrines and empty their own latrines, to really separate caste from cleaning work kind of more broadly. And then I think your second half of your question was about how is this related to the life expectancy work? We can't know. Ashish? Yeah, sorry. No, just wanted to say I have an answer ready, so I can go. Oh, You can add maybe later. तो जैसे पायल ने बोला कि जो छुआछूत और जातिगत असमानता है, उससे क्या होता है कि हमें लगता है कि जो ट्विन पिट लेट्रिन है जो सरकार बनाती है, जिसमें 2 गड्ढे होते हैं और जिसमें विच कलेक्ट्स फीसीज, एंड देन उसमें क्या होता है कि उसमें वो डिकम्पोज हो जाती है, और जब वो पूरी तरह ड्राई हो जाती है तब वो बेसिकली मनयोर बन जाती है, और उसको कोई भी साफ़ कर सकता है। हाँ, लोग उसको नहीं समझते और नहीं समझना चाहते और नहीं साफ़ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये किसी और का काम है। तो और किसी और का काम क्या है, जो गांव में दलित व्यक्ति हैं उनका काम है, तो लोग समझते हैं कि ये तो बेकार लैट्रिन है, इसको हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहते। उससे क्या इससे क्या होता है कि एक्चुअल में पूरे गांव या जो भी लोग रह रहे हैं, ये केवल एक समाज को अफेक्ट नहीं करता, सबको अफेक्ट करता है। तो अगर एक जना खुले में शौच करता है, तो बेसिकली जर्म्स इतना डिस्क्रिमिनेट नहीं करते जितना इंसान करते हैं। तो हो सकता है कि जर्म्स के कारण असमानता हो, मगर उतना नहीं, उनका प्रभाव हर एक को पड़ता है।
उससे क्या होता है कि सबकी स्वास्थ्य में फ़र्क होता है। तो जैसे राहत इंदौरी साहब का एक फ्रेज़ है कि लगेगी आग तो आएँगे कई घर ज़द में, यहाँ पर सिर्फ़ हमारा ही मकान थोड़ी है। वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में था, मगर हमने ये कई बार देखा है कि इनइक्वालिटी या असमानता, इनइक्वालिटीज़ क्रिएट एक्सपोज़र्स, सो इनइक्वालिटीज़ क्रिएट असमानता से क्या होता है कि हम सबका डिजीज़ से एक्सपोजर बढ़ता है, प्रभाव सब पे पड़ता है, और बट एंड देन एक्सपोजर्स अफेक्ट एवरीवन, सो इट्स नॉट दैट लाइक दीज it's inequality that is creating these exposures, but exposures end up affecting everybody, right? um, um, uh, and so I think, and in our life expectancy work, we have also seen this. तो हमने हमारे जो एनुअल हेल्थ सर्वे से जो पायल और संगीता के साथ जो हमारा पेपर है, उसमें हमने देखा कि अगर ओपन डेफिकेशन को कंट्रोल करें तो क्या वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिस्पैरिटीज़ है वो उनको एक्सप्लेन करती है कि नहीं, और हमने ये पाया कि एक्चुअली वो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो पुराना पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव है उसकी थोड़ी इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से, कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ओपन डेफिकेशन या चूल्हे का इस्तेमाल करना, जो कि असमानता से आ रही हैं, लेकिन उनका प्रभाव काफ़ी लोगों पे पड़ रहा है। तो जो लोग असमानता क्रिएट कर रहे हैं, जैसे पुरुष या फिर ऊंची जाति के लोग, उनको भी समझना पड़ेगा कि उनके स्वास्थ्य पे भी इससे फर्क पड़ता है। एंड आई थिंक ये पर्सपेक्टिव भी थोड़ा लिमिटेड है अभी तक। I think I was also going to add just that we don't know exactly what is causing the life expectancy differences, but open defecation and it's like people's exposure is there, but it's also that you know Dalits are the ones who are often doing this cleaning work even still, and that does expose them to health hazards and to more germs, all kinds of occupational hazards, not just from open defecation, but that is also sort of one potential reason that we're seeing these differences. Yeah, thank you so much for that. I know I'd ask another question, but now that you have answered this question, हमको इस पे एक दो सवाल ये थे कि एक तो मेरे समझ में ये है कि हाँ, दलित तो हम बोलते हैं क्योंकि हमारा फाइंडिंग उसके अनुसार है कि दलित आदिवासी करके, पर बहुत बड़ा रोल इसमें डेटा का भी होगा। पर क्या आपने कोशिश करा कि जाति वाइज कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन देखे, क्योंकि दलित में भी जब हम मैन्यू स्कैवेंजिंग की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से गलत होगा बोलना कि सारे दलित इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो एक पर्टिकुलर जाति होती है जिनको मतलब 60 फोर्स किया जाता है इस काम के लिए। तो अगर अगर हम ये लिंक अगर एक समझने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हमने जाति वाइज कुछ देखा है या फिर देखा जा सकता है? और दूसरा जैसे आपके पेपर में ये है कि सबसे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिफरेंस है वो आदिवासी और अपर कास्ट हाई कास्ट हिंदूज में ज़्यादा है, फिर दलितों में है, फिर मुस्लिम्स में है। और उसमें मेरा सवाल ये था कि आप ये पहले बोल चुके हैं आशीष की डेटा की वजह से हम रिलीजन में कास्ट नहीं देख पा रहे थे, पर हम आपसे समझना चाह रहे थे कि जैसे आमतौर पे बाकी इंडिकेटर्स में जब हम देखते हैं तो पसमानदा मुस्लिम्स जो होते हैं वो इकोनॉमिकली एंड एजुकेशन वाइज वो काफ़ी उनकी हालत सुधर नहीं रही है कंपेयर टू अदर सोशल कैटेगरीज। तो उसमें आपको क्या लगता है कि उसका क्या रोल होगा? क्या वो सेम हायरार्की, क्योंकि ये आई मीन दिस वाज अंडरस्टूड कि आदिवासी का सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है फिर दलितों का, और ये बहुत ऐसा कन्वेंशनल हायरार्की है। पर और वो कहाँ से आ रहा है? दिस इज़ व्हेन वी क्लासिफाई कैटेगरीज देन वी से कि ये कैटेगरीज हैं, इनमें इतने डिफरेंसेस हैं, इनको जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है या फिर जो एक्सपोजर लाइफ का, उन सब चीज़ों के तौर पे ये कन्वेंशनली हायरार्किकल डिफरेंसेस था। तो उसमें हम
ये एक डिस्कोर्स, ये एक बात समझना चाह रहे थे कि आपको क्या लगता है पसमानदा मुस्लिम्स की को लेके कैसा होगा, और क्या किया जा सकता है कि हम और बेहतर तरीके से इन सारे सवालों को समझ सकें। हाँ, तो जाति का मुझे लगता है कुछ कोई भी इंडिकेटर जातिगत समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3000 या 4000 जातियाँ हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आप एक तो आपके पास बहुत सारा कि अगर आपके पास 3000 4000 जातियाँ आ जाती हैं, या उससे ज़्यादा या उससे कम, तो फ़र्क देखना एक ग्रुप में वर्सेस दूसरा ग्रुप थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जातिगत मेजरमेंट करना सर्वे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सर्वे जिस तरह से जाति लिखते हैं वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ये खास तौर से मुश्किल आती है, और उसका कारण ये है कि भारत में डेथ भारत में हेल्थ काफ़ी ख़राब है, तो डेथ ज़्यादा है, मगर डेथ रेट फिर भी 8 पर हज़ार है, राइट। 1000 लोगों में से 8 लोग एक साल में मरते हैं। तो आपको बहुत सारा डेटा चाहिए अगर आपको जातिगत लाइफ एक्सपेक्टेंसी करना है। NFHS में लगभग 30 लाख लोगों का 30 लाख लोग हैं, तो इतना छोटा डेटा सेट नहीं है। लेकिन अगर आप जातिगत करने जाओगे तो काफ़ी मुश्किल आती है उसमें, आपके पास इतना आप कर ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अगर अगर आपको जातिगत जवाब चाहिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, या दूसरे इंडिकेटर्स का भी, मुझे लगता है तो सबसे अच्छा तरीका एक सेंसस हो, और जो कि मांग है इस समय। और दूसरी ज़रूरत यह है कि उसमें मृत्यु से जुड़े सवाल भी पूछे जाएं, जो कि काफ़ी जो कि इस समय काफ़ी ज़रूरी है, अलग कारणों के लिए भी। और उसका एक कारण ये है कि कोविड महामारी से कितने लोग मरे, ये भी हमें पता लगाया जा सकता है अगर वो सेंसस हो तो। um, जो maybe I don't remember the second question, and maybe you need to repeat it and then Payal can answer it. Yeah. Yeah, no, I was asking about caste in Muslims, and how do you think if we had the enough data to look at it, what do we expect in that? क्योंकि जैसे हम ये बोल रहे थे कि हमें लिटरेसी रेट देखते हैं या फिर मतलब बाकी इंडिकेटर्स में हम अगर वेलफेयर देखते हैं तो वो ये इस तरह से कन्वेंशनली है कि आदिवासी का सबसे निचला परफॉर्मेंस होता है, उनका वेल सोशल वेलफेयर बहुत इंडिकेटर्स बहुत सबसे कम होते हैं, फिर दलित होते हैं, फिर मुस्लिम्स का होता है। पर देन फिर मुस्लिम्स में ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसको जाति वाइज देख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पास काफ़ी रिपोर्ट्स हैं जो बता रहे हैं कि मुस्लिम्स का जो मोबिलिटी है वो कम हो गया है कंपेयर टू अदर क्लासेस कास्ट। तो उसमें हम समझना उसके बारे में आई थॉट मे बी वी कैन डिस्कस लिटिल बिट अबाउट अबाउट Yeah. पसमानदा। मुझे हाँ, ये आई थिंक दिस इज़ पॉसिबल टू डू, क्योंकि NFHS से भी ये मुमकिन है करना। और मेरे ख्याल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने की, और उम्मीद है कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से बाकी असमानता हैं, उसी तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी असमानता आएंगी। हालांकि हमने अभी तक करा नहीं है, तो हम जब आएगा तब आपको बताएंगे। Payal, you want to add to any of this question that we just discussed? No, I think Ashish covered it. But I think you are right that it is an important question that we don't often talk about caste within Muslims, and I think you're right that, I mean, yes, we should, and I think Ashish is correct, and this is something that we are trying to tease out. That I think we will find something. सैनिटेशन वर्क की बात की है तो उसके बारे में एक और लास्ट सवाल था मेरा पायल, आपका जो पेपर है और निखिल के साथ जो कास्ट इन हेल्थ वाला है वो हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो पेपर, और उसके बारे में और समझना चाह रहे थे आपसे कि आप वो मटर्निटी वार्ड में भी आपका काम है, वहाँ पे ऑब्जर्व किया, सैनिटेशन वर्कर के साथ काम है,
और इन सब में आपने वो मतलब एक कंक्लूजन है कि कैसे प्योरिटी एंड पोल्यूशन जो है वो कास्ट से रिलेटेड है, और हाइजीन, जब हम हाइजीन और सैनिटेशन की बात करते हैं तो वो कास्ट और एक पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर उसका बर्डन पड़ता है। तो उसके बारे में इफ़ यू कुड शेयर अ लिटिल बिट अबाउट दैट, एंड आई थिंक दैट्स आल्सो रिलेटेड टू द पेपर that we are going to discuss, not directly, obviously the link has not been established, but the fact that we are talking about health and how social factors are determining the expectancy, maybe these are also some things that people should be aware of, especially when that there is increased conversation on health related topics. And your findings from the field where you looked at the sanitation worker, the treatment given to them, and what is the facility available at hospital level Yeah. in the sector for these. Yeah. Okay. Yeah, so in this work, it started sort of from a question of, just why are hospitals, government hospitals, which is where we had spent some time, why were the conditions so unclean? And I think sort of combined with, again, looking at the quantitative data, I had just had my first baby, and so it was kind of playing in my mind a lot of like, how we're at a policy level bringing women into facilities to give birth, incentivizing women to come to facilities to give birth, and yet these facilities are not very hygienic. And so what are we doing in terms of the health of the women who are coming in at this very, exposed time when you're giving birth? And so just looking in the data, there's no information on actual like infection after giving birth, but there are surveys do collect data on like symptoms of infection, so fever type of things. And so I was looking, and just the differences between North and South India, I think, were kind of jarring. And then we also know that differences in maternal mortality are quite different between North and South India. And so I think that was sort of the thing that brought us to hospitals to see, okay, what is happening at the hospital level that may be contributing to maternal mortality, but through this pathway of infection, potentially. That was sort of the question. And the government has started paying attention to this. There are, guidelines on cleanliness, incentivizing hospitals to be clean. There's like a competition type of thing. And so when you go to a government hospital, we sort of just went and visited and sort of did more observational work initially. Things are pretty clean at the surface level. The hallways are mopped, and there's not that much garbage and litter and all that in the hospital itself. But, we found these huge garbage pits like right outside the hospital where things are just thrown, including, needles and things that you wouldn't actually want just sort of on the ground. And then watching, nurses do their job, kind of the behaviors in terms of, reusing gloves or not washing hands or just not having soap available. These sort of basic hygiene practices, once you start watching people do their work, it became very clear that was a problem, or, continues to be a problem. And this we sort of came to understand as like, just not really believing in or understanding kind of germ theory. But then the focus became sort of, okay, let's talk to the people who are responsible for cleaning these hospitals. So talking to the cleaners themselves. And then it became very quickly clear that, again, it's a issue of caste discrimination, that these are people who don't want to be doing this work, but this is a form of work that they are able to get. And they don't have
get respect in their job because of their social group, because they're these low caste people who sort of are assumed to know how to do this work because of their caste. They don't, it's as if they don't require training, as if like their whole life has been about this and only this, and that's how they're kind of seen as just cleaners. And they're expected to, many people were talking about, we know we're not supposed to sit in front of the other staff members who are higher caste. We are not supposed to eat with them. We are not supposed to socialize and, go to their homes as they do with each other. So that's one aspect. But then in terms of patient care, this came out because they have all of this cleaning work to do. It's like such a fundamental part of running a hospital and providing care. And yet they don't have the supplies to do it. They don't have, they're not paid on time. They're often asked to do other things. So their work is sort of seen as like, okay, whatever, you'll get that done, or you'll find someone else to do it because, everybody in your family can do the same thing. And so you come and help me and you do my work. So they'll do the work of the ayah, they'll do the work of even the nurses. And this is just, one, I mean, all of these problems sort of compounding. If you don't have the proper cleaning materials, the germs are sort of just passing around in the hospital, both to staff, to patients, among cleaning staff themselves. And so we really saw this as sort of rooted in casteism, like this attitude of sabka kaam alag hai, but still nobody will do the work of the cleaner. Like that work is really, only the cleaner can do the cleaner's work, but the cleaner can do every other job. So they're sort of pulled in all kinds of directions, and the cleaning work often doesn't happen. It'll often wait. A lot of hospital staff are like, okay, the cleaners will come and do it, even if the, stuff after the delivery is just sitting there for 12 hours, 24 hours, it's fine, but I can't touch that. Like that's not for me to do, it's for those other people to do. And so this real othering of these workers that very, very directly impacts patient care. So that was sort of what we found there in that research. Payal, quick follow-up question there. So you have talked about in your paper some nuances inside and outside of the delivery room as well. Can you talk about it, please? Yeah, I mean, outside of the delivery room, is this type of, in the maternity wards, we would see cleaners, for example, changing catheters, or again, sort of this like, changing sheets, whatever. They're responsible for doing lots of things in the delivery room. I don't know, just basic kind of rules that, they know they're supposed to be following these rules. For every woman, you're supposed to take out a new pair of gloves. Now, one, there is resource shortages, right? And so that's certainly an issue. It's not to diminish that issue. That's also very important. But even when there are resources available, there's just I don't know, there's this disrespect of cleaners that, so there's two issues. One is this, this shortage issue. So like gloves will get reused even in the delivery room, even between women sometimes. But then sort of the other question of like disrespecting the cleaner's work is what I was talking about, that, cleaners are the only ones who can do the cleaning work. And so even if it's bad for the patient, that like, all of this after delivery, like kind of materials that are bloody and need to be cleaned and should be cleaned fairly quickly because there might be another patient who's coming in. It just doesn't happen because of this attitude. And so those were the kinds of things that we were seeing in the delivery room that, I
I think the reason that that distinction was made, or that we chose to make that distinction, is because that's just a very direct patient interaction in the delivery room. Outside of the delivery room, sometimes it is direct patient stuff, but it's also just about like the cleanliness of the area also. Yeah, thanks for sharing about this research. So whenever I have been into the field and talked to people about their experience or surveyed them around health question, uh, एक तो मतलब sorry, just pausing it there. But generally, when we talk about health in India, there are only two things that we end up talking about. One is accessibility to healthcare, and then the other aspect being the policies around healthcare, looking at data. But why I wanted us to discuss this a little bit more, because it also shows services that is being provided at healthcare, which is primarily provided. They are basically a community which is forced to do this, and this has a long-term consequences. The one something that we have seen during the pandemic as well. So I wanted to make it very clear that when it comes to health or healthcare, there are multiple dimensions. One is who is providing these services, at what cost, what options they have. And the second is accessibility. This is where discrimination comes in. And then this the third aspect, which we actually came to talk about, but we digressed a bit, is about how a lot of these indicators are determining population health outcomes. And this is something that we move to discuss now. Um, so I wanted to ask you, Ashish, कि um, अभी जैसे आप जब पेपर डिस्कस करें तो उसमें भी आपने बोला कि अभी वी हैवंट लाइक अभी मुश्किल है ये कह पाना कि क्या व्हाट इज कॉजिंग दिस एग्जैक्टली. तो इसमें मेरा दो सवाल थे कि मे बी वी कैन टॉक अ लिटिल बिट अबाउट नाउ दैट पायल एंड बोथ ऑफ यू हैव शेयर्ड योर observations from field work. हम ये बात कर सकते हैं कि what could be possible reasons behind this, behind the differences that you are looking that you have found in your paper. In order to discuss that differences, maybe it will be a good idea अगर आप वो बताएं कि हम कौन से डिफरेंस को देख रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के पेपर में हमने स्टेट वाइज, रीजन वाइज, एज, कास्ट, काफ़ी सारे क्लासिफिकेशंस थे. तो आप उसमें से आपको जो भी जिस पे भी बात करना यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू डिस्कस, मे बी यू कैन टॉक अबाउट दैट. एंड ऑल्सो मे बी वी कैन डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड दिस. और दूसरा मेरा एक सवाल था जो हमको लगता है कि पहले भी क्लैरिफाई करना था कि जब भी ये पेपर की बात हो रही है, हम काफ़ी मतलब जब हम प्योरिटी पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इट एंड अप बीइंग the discussion is centering Dalits in this type of conversation, but आदिवासी के लिए थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है. तो उनके लिए भी क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, व्हाट इज लीडिंग टू दिस, एंड how should we looking at these, what are the questions that we should be asking. I'm sorry if that whatever I'm asking is not clear, but I'm also thinking as I'm speaking कि ये कुछ चीज़ें हैं that we should discuss now. Yeah, Aditi, and also this is like your day one as a podcast show, so it's completely fine. So I think what Aditi is saying, just to sum it up, Ashish and Payal, that let's start on the paper front. Uh, I would particularly like to know conclusion, the kind of segregations you have done, caste, religion lines, uh, but also please do focus on methodology. That how exactly, what were your methods, and the follow-up question that Aditi is asking is the differences, it, Dalits and tribals, and the typically how do you ensure that all of these are segregated, and are there something which we learn about Adivasis as well? So that's the broader. Okay. Okay. So thanks. These are great questions. ये काफ़ी ज़रूरी और इंटरेस्टिंग सवाल हैं. तो पहले मैं जो हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के साथ जो काम किया उस पर थोड़ा बात करता हूँ. ये काम निखिल सुदर्शनन के साथ हैं, जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फंड करता है, और ये पीरियोडिकली होता है. तो जब 2018 और 20 का 2008 सॉरी 1998 और 2000 और 1908 और 2000 और 19 2015-16 का जब सर्वे हुआ था,
तब उसमें ये सवाल पूछा गया था कि पिछले कुछ सालों में आपके घर में कोई, आपके घर का कोई व्यक्ति की, आपके घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी। अगर पूछा गया तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा उनकी उम्र क्या थी, वो महिला थे या पुरुष थे, और उनकी मृत्यु कब हुई। तो अगर हम इस सवाल, और अगर तो इससे हमें क्या, इस सवाल से हमें पता चलता है कि घर में उम्रवार और लिंगवार कितने लोग मरे हर एक उम्र में, हर एक लिंग में। और जो जिंदा लोग थे, जो घर के सदस्य थे, उनकी भी उम्र और लिंग पूछा गया। हाँ, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम इससे हर एक उम्र में मृत्यु दर निकाल सकते हैं। अब हम हर एक उम्र में जब मृत्यु दर निकाल लेंगे, उसके बाद हम ये निकाल सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था, या जिसको हिंदी में जीवन प्रत्याशा बोलेंगे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में ये समझना ज़रूरी है कि वो मृत्यु दर का एक सूचकांक है। तो वो 1/3 हिस्सा है उसका यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और वो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंडिकेटर है, वो विकास का इंडिकेटर है। और बेसिकली अगर आप जिंदा नहीं है तो विकास का कोई मतलब नहीं है, राइट। ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इतना महत्व दिया जाता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें क्या बताता है कि अगर जो हमने 2013-16 में, जो मान लीजिए जो मृत्यु दर हमने देखी एनएफएचएस में उम्रवार, अगर वो लोगों की जिंदगी भर रहे तो क्या, तो उनकी वो कितने आमतौर पर मरेंगे। कुछ लोग 4 साल में, कुछ लोग बचपन में मर जाएंगे, कुछ लोग 5 साल में मर जाएंगे, कुछ लोग आगे मरेंगे, कुछ लोग 80 साल तक जिएंगे। ऑन एवरेज औसतन कितने लोग जिएंगे, उस हिसाब से कि जो जो 2013 या 2013-16 से में जितनी मृत्यु दर थी उम्रभर। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो 2013-16 में पैदा हुए वो उतने साल जिएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कितने साल जिएंगे बाद में। हम ये कह रहे हैं, हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहे हैं कि अगर जो हमने देखा 2013-16 में, अगर वो उनकी ज़िंदगी भर चला तो कितना जिएंगे। हम प्रोजेक्शन नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये एक तरह से समरी मेजर है। और इसमें हमने, और एनएफएचएस की एक और खासियत ये है कि उन्होंने ये भी देखा कि लोग किस जाति या किस धर्म में हैं। तो उन्होंने लोगों से पूछा क्या आप दलित है, क्या आप आदिवासी हैं, क्या आप पिछड़ों में आते हैं, या और पूछा कि आप कौन से धर्म को मानते हैं, ये सवाल भी पूछा। तो क्योंकि एनएफएचएस ने ये पूछा है, हम एनएफएचएस से जातिवार लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 एस्टिमेट हैं, क्योंकि पिछले एनएफएचएस ने बोला पिछले कुछ सालों में कितनी मृत्यु हुई। तो एक 1997 से 2000 का एस्टिमेट है हमारे पास, और एक 2013 से 2016 का एस्टिमेट है हमारे पास। तो दोनों पीरियड्स में हमें बहुत ज़्यादा असमानता, बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखता है। जो शोषित समाज के लोग हैं, जैसे दलित, आदिवासी, पिछड़े, और जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग, उनमें। तो 1997-2000 में हम बात करें अगर, तो औरतों में जो ऊंची जाति के लोग थे उनकी 64 साल से ज़्यादा थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 57 साल थी। तो करीब 7 साल से ज़्यादा का फ़र्क था उनके बीच में। इसी तरह आदमियों के बारे में बात करें, या पुरुषों के बारे में जनरली, तो हाई कास्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी 63 साल थी, और आदिवासी आदमियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 54.5 साल थी। तो करीब 8 साल से ज़्यादा का फ़र्क था। तो अगर हम इन फ़र्कों के बारे में ही सोचें कि 8 साल, भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल लगते हैं 8 साल इम्प्रूव करने में, तो 15 से 20 साल लग जाते हैं 8 साल, केवल 8 साल इम्प्रूव करने में ओवरऑल ऑल इंडिया में। तो हम ये सोच सकते हैं कि आदिवासी लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 20 साल पीछे है, जितनी ऊंची लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उतने। हाँ, और दलित, इसके बाद अगर हम दलित और
ऊंची जाति के लोगों को कंपेयर करें तो हमें 5 से 6 साल का फ़र्क नज़र आता है। जैसा कि अदिति ने पहले बोला कि अगर हम पिछड़े लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें, ओबीसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें, तो वो लगभग भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के आसपास है, बिल्कुल बीच में है। तो तो बेसिकली जितनी औसतन है उतनी ही लगभग पिछड़े लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है। तो हाईकास्ट सबसे ऊपर, ओबीसी बीच में, और दलित और आदिवासी सबसे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अगर हम आगे बढ़ें 2013 और 16 तक जाएं तो हमें यह ध्यान में रखना होगा पीरियड है। इसमें भारत में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, कई सारी सामाजिक स्कीम्स आई हैं, हेल्थ जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चालू हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि काफ़ी हुई है, और लोगों की ज़िंदगी में भी इससे फ़र्क आया है। तो सभी ग्रुप्स के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, और ये अच्छी बात है कि सब में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। मगर ऐसा नहीं है कि फ़र्क कम हुआ है ऊंची जातियों में और जो शोषित समाज है उनके लोगों में। तो बेसिकली एक तरह से पैरेलल लाइन चल रहा है, इम्प्रूवमेंट सब में है, बट बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फ़र्क उतना ही है जितना पहले था। ऐसा नहीं है कि एवरेज औसतन इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो जो फ़र्क है वो कम हो रहा है, या असमानताएं कम हो रही हैं। असमानताएं उतनी है जितनी पहले थी। तो इसमें दलित आदमी और हाईकास्ट आदमियों को जब हम कंपेयर करें तो हमें ये मिलता है कि फ़र्क बढ़ गया है पहले से। तो इनफैक्ट ये काफ़ी वरिंग है कि एक्चुअली क्यों ऐसा हो रहा है और इसके कारण क्या हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसके बाद थोड़ा ऊंची, इसमें एक और कंपैरिजन है मुस्लिम लोगों में और ऊंची जाति के लोगों में। तो इसमें ये बताना ज़रूरी है कि जैसे कि सचर कमेटी ने भी नोट किया था कि मुस्लिम लोग बाकी चीज़ों में ऊंची जाति के लोगों से या हिंदू लोगों से काफ़ी पीछे आते हैं, शिक्षा के मामले में या फिर इनकम के मामले में या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में फ़र्क कम है। और उसका एक कारण ये माना जाता है, एक कारण डीन स्पेयर्स और माइकल जेरूसो का एक पेपर है जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि मुस्लिम लोग एक तो एक साथ रहते हैं, मतलब क्योंकि सेग्रीगेशन इस तरह से है गाँव में और शहरों में कि लोग एक समाज के लोग लगभग एक साथ रहते हैं, और मुस्लिम लोग शौचालयों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उसके कारण मुस्लिम लोगों में गरीब होने के बावजूद इन्फेंट मोर्टालिटी कम था। हाँ, और हमने ये पाया है कि इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टालिटी में ही फ़र्क नहीं है, थोड़ा बाकी की उम्र में भी फ़र्क आता है। तो इसका क्या कारण है वो समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम 1997-2000 में बात करें तो मुस्लिम लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा कम नहीं थी, लगभग बराबर ही थी, थोड़ी सी कम थी। अगर हम 2013-16 तक आते हैं तब तक मुस्लिम लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 3 साल कम हो जाती है हाई कास्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी के। तो ये भी बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि हमें नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, और बिल्कुल, और एक तरह से जो मुस्लिम लोगों का शोषण, इसका एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि मुस्लिम लोगों में शोषण के कारण जो समाज में शोषण बढ़ा है उसके कारण उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी नहीं बढ़ी है जितनी हाई कास्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, और जो उनकी एडवांटेज थी जो कि उनके बिहेवियर्स के कारण थी, जैसे शौचालय का इस्तेमाल करना या शराब कम पीना वगैरह वगैरह, वो अब नहीं दिख रही डेटा में। इनफैक्ट जो बिहेवियर्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था वो जो सामाजिक असमानता के नेगेटिव कंट्रीब्यूशन से कम हो गया है, एक तरह से ऐसे देखा जा सकता है इसको। Payal, anything you want to add? Should I talk about the other study now? Is that helpful? PHS study? Okay. Yeah. So the AHS study used a different data set, the annual health survey.
much larger data set in terms of number of observations, but it's only in 9 states in North India. And so in this study, what we found is that relative to higher caste Hindus, and so in this study, this includes both high caste Hindus and OBCs together, Adivasi life expectancy is 4 years lower. Dalit life expectancy is about 3 years lower, and Muslim life expectancy is about 1 year lower. I think one thing that I just wanted to know, I have been asked this question, again, like differences in talking to your family and friends versus sort of in professional circles. But when talking about like 4 years, 3 years, 1 year, a couple of people have said, well, oh, okay, that's not so large. It's just, just a couple of years. Is that such a big deal? And so I think, like, yes, it's a big deal. And I think one way to think about that is, when we think about on the individual level, like we fight for our loved ones, for like a few more weeks of their life or a few more months of their life when we're trying to find health interventions. And then like what Aashish was saying, it takes so much to increase life expectancies at the population level, years and years and years of so many changes. And so, losing full years of life for entire groups of people, it is a really serious issue. So, just one thing to keep in mind. I think the other thing to say about this AHS study, the one question that we were asking, the exercise that we were doing is, okay, what if the marginalized groups that we're looking at, what if they had the same socioeconomic status distribution as the higher caste Hindus' socioeconomic distribution? Then, if we have them at the same level, what would their life expectancy then look like? And what we find is that these socioeconomic differences account for less than half of the gap between Dalits, Muslims, and Adivasis and higher caste Hindus. And so, we can't know for sure what is driving the other half. But the oppressed status of these groups, the exploitation they face, the discrimination that they face, is likely some part of it, although that's very difficult to quantify exactly how much or what exactly that is. So we would like, for additional things, looking at behaviors or risk factors, we would need more data that sort of, looks at what are the different cultural norms or different occupations, for example, in these groups that links it to mortality status. We would need data like that to actually tease out what's happening in the other half. But we don't really have that type of detail. So, I'll leave it at that. if I have to ask that, if three of you, including Aditi also, since you may have some opinions there, Aditi, if all three of you have to make some hypothesis on the other half, uh, what would that be? Is it more geared towards lack of nutrition, accessibility to health, or something else? And what is your hypothesis that what would the other half would contribute? I want to hear what Aditi thinks. Then we'll get ideas on what to Okay. do with these things. So Vandit, you are actually just asking my question because that is what I asked Akshay before. So I don't have any clear answer like all of us, but so uh, if I have to say something, this is what I'm thinking about actually, that when we talk about direct discrimination, when we talk about say one component, and any component that we are talking about, I'm pretty sure that it plays an important role, but it cannot account for all the difference that we're looking at. So for example, say uh, one aspect of it could be accessibility to healthcare. This I am assuming is probably not determining entirely, but it has a role to play because it also, that अगर accessibility नहीं होता तो it also affects your behavior towards your health, towards how you're responding to your health emergency at home. And a lot of us have worked in the field and we have realized कि काफ़ी बार लोगों का ये रिएक्शन होता है कि लोग मरने के हालत में होते तभी आते, उसके पहले नहीं आते, एंड दिस इज व्हाट डॉक्टर्स
say, and then they blame people for all of this. But उसमें जो एक फैक्टर मेरे पढ़ाई से, मेरी रिसर्च से समझ आया था, वो ये था कि सिर्फ लोगों को पुश करना कि आप हेल्थ केयर एक्सेस करो इज़ नॉट द आंसर, क्योंकि जैसे पायल ने भी शुरू में बोला था कि पॉलिसीज़ बन रही हैं, ऐसे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, जैसे जेएसवाई है, पीएनएनवीवाई है कि इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरीज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। पर उस दौरान ये डिस्कशन होना जो हमने अभी बात करा कि वो जो डिस्क्रिमिनेशन है सर्विस प्रोवाइड करने में या फिर एक्सेस करने में, वो कितना प्रेवलेंट है और उस पर कितना कम बात हुआ है, मुझे लगता है कि उस पर अगर हम लोग और बात करते रहें और रिसर्च किया गया तो दैट इज़ प्रॉब्ली अ फैक्टर, बट आई कांट से फॉर श्योर। उसके अलावा आई वाज जस्ट थिंकिंग कि um, क्योंकि जो जैसे है कि हाई कास्ट हिंदूज जो हैं उनका सबसे बेहतर है, फिर ओबीसी, देन दलित, देन आदिवासी, एंड दिस इज द trend that we observe in almost any other indicators when we look at education or uh, mortality or any other welfare indicators. तो फिर हमको लग रहा था कि maybe the fact that they come from these locations in itself is, I don't know in what ways it's working out, but that is determining, and I have no idea वो कैसे function कर रहा है, and that is where Ashish and Payal would me have some answers कि क्या है आपके observation में, क्या है कि क्यों हो रहा है ये सब, and I'll keep adding to अगर कुछ बाद में याद आता है, but अभी के लिए let's move on. Yeah. I mean, I agree with Aditi. I want to add this bit. See, for instance, in Annihilation of Caste, Dr. Ambedkar says that caste kills public spirit, right? So, or an upper caste public is basically, it limits who our public is. So, इसका मतलब हिंदी में बोलें तो ऐसा होता है कि हम किसके बारे में सोचते हैं और हम किसकी परवाह करते हैं, ये कास्ट डिटरमिन करता है। हम किसको बराबर का इंसान समझते हैं, ये कास्ट काफ़ी डिटरमिन करता है। और ये काफ़ी साफ है कि जिस हिसाब से हम सरकारें या लोग जो सरकार में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनमें जो वंचित या दलित आदिवासी लोग हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो उसके कई तरह से उदाहरण दिए जा सकते हैं, मगर हमको इस पर भी सोचना पड़ेगा कि सरकार किधर, अगर किसी गांव में अस्पताल नहीं है और अगर वो ज़्यादातर या किसी शहर में अस्पताल नहीं है, तो अगर वहाँ अपर कास्ट लोग रहते हैं तो अस्पताल कितनी जल्दी बनेगा, और अगर वहाँ दलित आदिवासी लोग रहते हैं तो अस्पताल कितनी जल्दी बनेगा। और इन लोगों की, और अगर दलित आदिवासी लोग एजिटेशन करते हैं या संघर्ष करते हैं कि हमारे यहाँ ये सुविधाएं होनी चाहिए, तो वो कितनी जल्दी मानी जाएंगी वर्सेस अगर कोई और करता है। और इसका थोड़ा सा उदाहरण ये भी है कि कई बार ये होता है कि अगर हम सामाजिक संघर्षों में भी ये देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, मगर उनमें कोई अपर कास्ट या कोई प्रिविलेज इंसान होता है जिसके कनेक्शंस होते हैं सरकार के कारण, और जब वो बात करते हैं तब वो चीज़ मिल जाती है। मगर जब आमतौर पर जो रहने वाले हैं, जो एक्चुअल में फेस कर रहे हैं, जब वो बात करते हैं तो कुछ नहीं हो पाता है, राइट। तो इसके दो लेसन हैं मेरे लिए कि अक्रॉस का सॉलिडारिटी इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी और दूसरा ये कि कुछ हद तक स्ट्रक्चर ये है कि अगर वंचित लोग संघर्ष करेंगे तो उनको अगर वो कुछ अपने लिए मांग करेंगे तो वो बहुत मुश्किल से मिल पाएगा। और इस समझ से सोचें तो जो पार्टली ये हो रहा है मेरे हिसाब से कि ये मुद्दा ही नहीं है, और अगर मुद्दा ही नहीं है तो फिर सरकार को, पहली बात तो स्वास्थ्य ही मुद्दा ही नहीं है, और उसके बाद
अब स्वास्थ्य थोड़ा सा मुद्दा बना कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, मगर उसके बाद स्वास्थ्य में जो असमानताएं हैं वो भी बिल्कुल मुद्दा नहीं है। और वो मुद्दा क्यों नहीं है? क्योंकि जिन लोगों को फर्क पड़ता है, जो लोग इस द पीपल एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस आर द मार्जिनलाइज्ड पीपल, राइट? सो आई थिंक sorry, दैट Payal, इज I हेल्पफुल टू just कीप इन wanted to add to what Ashish just said last में, वही हम दोबारा जब आप बात कर रहे थे तो हम सोचे कि ये एकदम क्लियरली बोलना भी ज़रूरी है कि शायद एक बहुत बड़ा रीज़न ये डिफरेंस का ये है कि हमने इस पे अभी तक ध्यान ही नहीं दिया, और ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो रहा था, पर किसी ने देखना ज़रूरी नहीं समझा कि ये डिफरेंसेस कास्ट, सोशल लोकेशन वाइज़ कैसा है। क्योंकि अगर मान लो अभी से हम कुछ 20 साल पहले, 25 साल पहले एक बहुत ही जो सब जिसके बारे में सब कोई बात करते कि एजुकेशन एज अ इंडिकेटर, अगर हम लिटरेसी पे भी देखते हैं, तो उस समय जब हमने ये डिफरेंस देखा कि जब बहुत पहले एक सर्वे हुआ था, तो अ, जब इंडिपेंडेंस के पहले वाले सर्वे, अनसर्टेन कोरी में कहीं पे एक टेबल था जहाँ पे अपर कास्ट हिंदूज मेन और दलित वुमेन के बीच में कंपैरिजन था, तो दलित वुमेन 0 था उनका लिटरेसी। उस समय अगर हम ये सवाल कर रहे होते कि इस केस के पीछे क्या वजह है, क्यों हो रहा है ऐसा, तो शायद उस समय भी हम यही बोलते कि हमें नहीं पता एग्जैक्टली, पर मे बी सोशल फैक्टर, कास्ट, एक्सेसिबिलिटी इज एन इशू, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि अभी जब ये जानकारी तुरंत पता चली है, तो मेरे हिसाब से तो एक एक्सेसिबिलिटी इशू है, उसके बारे में बात करना एक इशू है, पर द फैक्ट कि हम लोग ये सवाल कर पा रहे हैं, ये डिस्कशन हो पा रहा है, वो अभी तक नहीं हो पाया था क्योंकि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। तो हाँ, बस हम वो ऐड करना चाहते थे। सॉरी। Yeah, the original question of like what are these differences, and sort of linking it back to Aditi, what you're saying, like discrimination in health takes so many forms, right? Like one is this access issue. Maybe there's less resources going to where Muslims and Dalits live, and so they don't have access, or they're facing greater environmental exposures. Or in interactions with health staff, someone from a marginalized group is treated with little respect, and so then they don't want to come back because they realize, okay, we're not welcome in these spaces. Or there's research on how discrimination and disadvantaged facing that on a prolonged basis causes stress, and that causes serious health deterioration, psychological health deterioration, physical health deterioration. But I don't know, it's hard to identify and quantify discrimination. And then I guess the other point that Aashish also is making, that health is not just affected by these explicit discriminatory practices, right? It's these inequalities kind of more broadly that matter for health. And there's this paper, in the US context, these sociologists, Link and Phelan, they discuss how marginalized groups have less on so many levels, right? They have less money, they have less access to knowledge, they have less power within institutions, less beneficial social connections, less psychological advantages. There's all of these inequalities sort of mean that they're just less able to prevent and treat any health things that happen to them. And so what they say, I think, is that like it's these differences in resources that come about because of racism. This is what Aashish was also saying before. These resource differences are not coming from nowhere. Casteism, religious discrimination in India, these are the things that are creating these differences. And so simply like addressing the surface level knowledge gaps or financial gaps are not going to change the disparities. Like the only way to really fix these things is to fix the underlying belief in the fact that some people are less equal and less worthy of having a high quality life. And to go back to the point that we were talking about just before this, about this not even being an issue. In the US, there's like entire centers that are devoted to thinking about health differences and marginalization between Blacks and whites, for example. And so I think part of the reason or our motivation for us in studying
measuring social inequality, like really thinking about the data that we have and how do we measure this stuff, is to sort of expand the public discourse in India about how do we think about social progress. It's kind of uncomfortable to talk about these things, and so they don't get talked about. And I think like it's just easier to be like, oh, well, economic progress will just fix everything, right? Eventually, this stuff will get better. But I think accurately measuring the extent of these things really, hopefully, can open up sort of more frank discussions, and thinking about like what social policy is actually needed. Yeah, I want to re-emphasize this point that, I mean, this is sort of a broad area, and so I think with life expectancy, you can think about it as like a basic indicator for well-being. And so one our hope, and I think to some extent this is already happening, but our hope is that other people will, so it's like a very broad, lots of things contribute to life expectancy, and so I think everybody would take whatever is their domain. So for instance, healthcare, people would consider within healthcare, those who work on access to healthcare would think about that, those who work about other domains will think about other things. And I think that has also been the US experience, that health, that actually there are similarly large disparities in the US अमेरिका में भी इस तरह की असमानताएं हैं, मगर वो कम हुई हैं क्योंकि इस पे सामाजिक जोर काफ़ी दिया गया है। अगर आप स्लोगन देखिए ब्लैक लाइव्स मैटर, तो वो इसी, आई मीन, वो इसका रिफ्लेक्शन है कि जो अमेरिका में जो शोषित समाज के लोग हैं उनकी ज़िंदगी पे इतना फ़र्क नहीं, उनकी ज़िंदगी के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जिस भी पहलू पे हम काम करना चाहें समाज में, उसमें इसको देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम हमारा एक्सपर्टीज़ काफ़ी लिमिटेड है इन चीज़ों पर भी, और और ये कॉन्वर्सेशन भारत में ही इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उदाहरण के लिए, अगर जो लोग दुनिया भर में हेल्थ पे ध्यान देते हैं, अगर 15-20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ लोगों की ज़िंदगी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा ख़राब है, जो कि कई देशों की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, तो उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि भारत में जो असमानताएं हैं, अगर हम ग्लोबल हेल्थ की बात करें तो ग्लोबल हेल्थ की बात भारत में असमानताओं के बिना बात करें नहीं हो सकती है। मतलब ओवरऑल भी कंट्री का इंडिकेटर जो है इसके कारण डाउन हो रहा है, और कंट्री का ओवरऑल इंडिकेटर कैन नॉट इम्प्रूव अंटिल यू एक्चुअली दुनिया का वो ये बोल रहे हैं कि अगर वर्ल्ड इंडिकेटर भी इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको इंडिया के लोगों पे ध्यान देना है, क्योंकि दे लाइक दिस पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज नंबर। राइट। हाँ, मतलब आदिवासी और दलित लोगों की पॉपुलेशन यूएस की पॉपुलेशन के बराबर है, राइट? तो अगर हम आप ये सोचो कि यूएस की हेल्थ केयर के बारे में कितना कुछ सोचता है, हमें उतना सोचने की ज़रूरत है इन चीज़ों पर। और अगर या फिर हम इंडिया की हेल्थ के बारे में कितना सोचते हैं, हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है उस पर। लेकिन हेल्थ के लिए अब मान लीजिए मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे इंप्रूव करी जाए, तो आप उसमें 100 चीज़ें गिनाओगे, राइट? कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और इसी तरह हमें दलित और आदिवासी लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में सोचना है। वो थोड़ा काम वायलेंस के ऊपर भी था, एंड देन व्हाइल बोथ ऑफ यू वर डिस्कसिंग द फैक्टर्स व्हिच माइट बी causing this, I was also thinking कि जब भी हम हेल्थ या फिर दलित वुमेन पे काम करने की कोशिश करते थे, तो 1-2-3 चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही थी, वो ये थी कि कोई भी पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में, सक्सेसफुल कराने के चक्कर में दलित वुमेन जो है वो सबसे आसान टारगेट हुआ करती थी। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल वाला जब था, तो उसके ऊपर इतनी सारी स्टोरीज, क्वालिटेटिव सर्वेज हैं कि कैसे उनके साथ ज़बरदस्ती किया जाता था, और मतलब वो जो बॉडी पे कंट्रोल की बात करते उसमें तो बिल्कुल भी लागू नहीं होता था। अब जैसे जेएसआई वाला एग्जांपल था कि इवन दो दीज पॉलिसीज आर रियली नाइस, बट
The fact that they were caste blind, it led to some unwanted consequences. And सो वैसे कुछ कुछ चीज़ें, और हेल्थ के बाहर भी जो वायलेंस होता है वो उस तरह के वायलेंस, या फिर जो हम लोग मैंगो स्कैवेंजर्स की बात कर रहे थे, उस वो वाल्मीकि समाज के लोग, उनके ऊपर जो एक तरह का वायलेंस होता है, तो हम ये समझ रहे थे कि ये जो फैक्टर्स हैं जो नॉन हेल्थ रिलेटेड भी हैं और हेल्थ रिलेटेड भी हैं, उन सबको मिला के अगर हम करें तो क्या वो सब, do all of these together give us an argument that why there is a difference in life expectancy that we're observing, or I mean, what do you think about this? या नो हाँ, मुझे लगता है कि हिंसा और जितना ज़्यादा वायलेंस हमारे समाज में दलित आदिवासी लोग फेस करते हैं उतना कोई फेस नहीं करता, और उसमें भी पुरुष और महिलाओं में महिलाएं ज़्यादा फेस करती हैं, ऑब्वियसली घर पर भी और घर के बाहर भी। अम, अ, फिर से ये तो काफ़ी कुछ मुझे लगता है कि इसमें डेटा की लिमिटेशंस हैं। तो उदाहरण के लिए हम जब एक उदाहरण ये आई मीन एक हम बस ये देख सकते हैं कि कभी भी जब लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या अपने एक कुछ सामाजिक कुरीतियों को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सीधा सा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, और ये चीज़ें एक्चुअल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कंट्रीब्यूट करती हैं। ये भारत में छोटी चीज़ें नहीं है। हाँ, तो जिन उम्रों में ये होती है, मान लीजिए यंग लोगों में 15 से 30-40 साल के लोग जो जो वायलेंस से काफ़ी ज़्यादा, जिनके ऊपर जो स्ट्रगल्स में आगे होते हैं, या उदाहरण के लिए जैसे हम कई बार सुनते हैं कि वो घोड़े पे चढ़ने चाहते थे अपनी शादी में, पर उनको लड़ाई हो गई या किसी की मृत्यु हो गई उसके बाद, या बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है भारत में, राइट। और ये चीज़ किसी की मृत्यु हो गई वो तो करेगी ही, मगर अगर लड़ाई झगड़ा भी हुआ और कोई किसी को चोट लगी उससे भी फर्क पड़ता है लॉन्ग टर्म पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर, राइट। या तो ये पुरुषों की बात हुई, और महिलाओं के बारे में भी सोचें कि अगर ज़रा सा किसी ने कुछ बोल भी दिया तो भी लड़ाई हो जाती है। अगर बोल दिया कि 100 रुपये नहीं 120 रुपये दो खेत में काम के, तो लड़ाई हो जाती है। और हमने ये अपनी आपस में देखा है, इतना ज़्यादा लड़ाई होते हुए, राइट, कि मैं हिम्मत कैसी हुई ये बात करने की। लड़ाई मतलब वन साइडेड वायलेंस, और वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्फ्लिक्ट? No, I'm saying I'm talking about one-sided violence when people try to resist oppression, and then immediately there is a backlash, and basically one of the standard tools of backlash is just go beat people up, right? How dare you, right? Um, uh, so yeah, I think those are important contributors to life expectancy disparities also, and I think we don't measure these things very well. And I think so surveys don't measure these things very well, and administrative data from the जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है उससे वो भी इन चीज़ों को बहुत अच्छे से दर्शाता नहीं है। एंड वी नो कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है उसका डेटा पुलिस रिकॉर्ड करती है, और हम जानते हैं कि पुलिस कितनी कास्टिस्ट है, तो वो डेटा जनरेशन में ही काफ़ी कुछ मिस हो जाता है। या I had one question. Specifically, wanted to know पायल अदिति दोनों से ही कि स्टेट वाइज कैसे आप वेरिएशंस देखते हैं, एंड जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड क्योंकि इससे स्टेट का भी अदिति स्माइलिंग स्टेट वाइज बिकॉज दिस आल्सो स्पीक्स अबाउट कि स्टेट की सिचुएशन क्या है. तो जस्ट मे बी पायल यू हैव वेरी सम ऑफ द very intuitive graphs in your paper of where you're comparing different states. And then also, Ashish, if you can talk both of you about ki how the situation differs in state, and I mean, obviously, we may not know why, but we can just think that why could this be? I think I'm going to let Ashish take this one. You can maybe talk about both of them together. That would be good. Okay. Yeah. Okay. Thanks. No, I can do that.
तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो कि 2013-16 में था, उससे हम भारत के अलग अलग प्रांतों को देख सकते हैं। हम स्टेट नहीं देख सकते लेकिन रीजनली देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम NFHS 4 में स्टेट वाइज देखना चाहें तो हम वो इतना बड़ा डेटा सेट नहीं है। हाँ, तो हम उससे रीजन देख पा रहे हैं। और अगर हम रीजन देखें तो पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़ दें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ दें, तो बाकी सब राज्यों में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा बाकी सब राज्यों में हमें फर्क दिखता है, काफ़ी अंतर दिखता है दलित और आदिवासी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में और ऊंची जाति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक रीजन में ही तो ऐसा है कि सभी रीजन में काफ़ी असमानताएं हैं। सबसे ज़्यादा असमानताएं अगर हम देखें तो वो सेंट्रल इंडिया और जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पर है, जहाँ पे दलित आदिवासी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा कम है। मगर दक्षिण के राज्यों में, सदर्न स्टेट्स में भी काफ़ी अंतर है। तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण के राज्यों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है और हेल्थ केयर ज़्यादा है एक्सेट्रा। वहाँ पे कुछ हद तक ज़्यादा स्ट्रगल्स भी हुए हैं कास्ट के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे असमानताएं अभी बिल्कुल कम हो गई हैं या फिर काफ़ी कम है। वहाँ पे भी हमें काफ़ी बड़ी असमानताएं दिखती हैं। और मुझे लगता है इसका ये एक पिछला सवाल था, उससे काफ़ी जुड़ा हुआ है कि एक्चुअली सामाजिक ढांचा जो है उस पे थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, और किसकी कितनी परवाह की जाती है समाज में, उसके बारे में सोचने की हमें थोड़ी ज़रूरत है। ये दिखाता है कि सदर्न स्टेट्स में जहाँ पर काफ़ी सारी और चीज़ें बेहतर हैं, एजुकेशन सिस्टम बेटर है, हेल्थ केयर सिस्टम बेटर है, वहाँ पे भी काफ़ी फ़र्क है। इससे ये भी पता चलता है कि एवरेज इम्प्रूवमेंट्स करेंगे, अगर जाति पे ध्यान ना देकर हम हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। असमानताओं पर हमें खास तौर पर इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। जो एनुअल हेल्थ सर्वे है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से थोड़ा बड़ा है, उसमें सैम्पल साइज थोड़ा बड़ा है। तो वो उन 9 राज्यों के लिए जिनमें एनुअल हेल्थ सर्वे हुआ, उनके लिए हम एनुअल हेल्थ सर्वे से हर एक राज्य में की असमानताएं वो देख सकते हैं। उसमें भी हमें मिला कि हर एक राज्य में असमानताएं हैं। अगर हम दलित और आदिवासी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो दलित लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम उत्तर प्रदेश में है, जो कि हम सोच सकते हैं कि ऐसा होगा। आदिवासी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम मध्य प्रदेश में है। आदिवासी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा असम में है। और फिर से ये दिखता है मेरे हिसाब से कि असम में आदिवासी लोग थोड़े वेल रिप्रेजेंटेड हैं सामाजिक ढांचे में, उनके साथ इतनी ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है। असम पूरे राज्य के साथ भारत में भेदभाव होता है, मगर आसाम के समाज में आदिवासी इतने शोषित नहीं है, और आई थिंक ये काफ़ी दिखता है उसमें। तो फिर से अगर हम राज्यों पे फोकस करें तो इससे ये सीखने को मिलता है कि ऐसा नहीं कि कुछ राज्यों में केवल कुछ ही राज्यों के बारे में है, ये सामाजिक ढांचे के बारे में है। और इससे हमें पता चलता है कि केवल आमतौर पर स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे तो उससे असमानताओं पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। So how has been the response from the researcher community और बाकी लोग जिन तक हमने कोशिश करा ये रिसर्च पहुंचाने का? आप लोग उसका कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? कैसा लग रहा है? कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या होगा आगे? Yeah, Payal, if you have received any feedback, good, bad, from research community, outside research community, health community, the community which is interested in health, or general public that we were trying. I think at least from the people that I am around at the university here, it's been interesting. One thing that has been interesting is sort of like a feeling of surprise that this hasn't been done before. That like, how did this happen? That you guys are the first ones to, or maybe not the first one, but like that this is getting so much attention. Even it's like, for people from the US perspective, I think it's like kind of shocking
to them that like, how is this special? Like, how is this interesting? How is this new? And so that has been sort of surprising to me, because from their perspective, it's like, yes, like, in the US perspective, especially, like black white differences are so studied and thought about. Again, going back to the previous conversation, that like this is a real issue of importance here that is constantly thought about by scholars, by activists, by all kinds of policy organizations. And so, yeah, like, I think people here have sort of expressed to me like, okay, this is super important, and it's good that you guys have done this carefully and done this really like thoughtfully, but kind of like, I don't know, just a little bit not laughing, but like just, it's interesting that why hasn't this been done before, and why isn't there so much more on this? Because yeah, it's big. So I think that that's one thing that I have definitely heard around me. I mean, and so I think the response with people who think about these issues Yes. in India is also similar, right? That so, for instance, to the average Dalit person and Adivasi person, this is like fairly obvious, and no, duh, of course this is there, and that's one set of responses. I would say that we also had this response from professional peers that, oh, this is not possible to do. एंड आई थिंक दैट्स वन रिस्पॉन्स बिकॉज वो लोग इस तरह से सोचते हैं कि मोर्टेलिटी डेटा बहुत ख़राब होगा भारत में, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है करना, राइट? जो कि हम, आई थिंक what is interesting is that we are able to show that that's not the case, that we have decent enough data if we pay attention to it carefully. इसके अलावा भारत में मेरे हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन इसको पढ़ रहा है, क्योंकि क्योंकि कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, ये बहुत ऑब्वियस फाइंडिंग है, और उनको अपनी ज़िंदगी में ये नज़र आता है. मुझे लगता है कि अपर कास्ट लोगों को ख़ास तौर पे सोचने की ज़रूरत है इसके बारे में, और वो सोचना नहीं चाहते हैं, और जब वो सोचना नहीं चाहते हैं तो वो ये जवाब देते हैं, या तो हम बोलते हैं कि ये लोग, इनको किसी ने पैसा दिया है इस काम को करने के लिए, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स हो गया है हर एक चीज़ का, जो कि हमें पता नहीं किसने पैसा दिया, हमें कहीं से पैसा नहीं, बट दूसरी चीज़ ये भी है कि वो ये बोलते हैं कि नहीं, ये इसकी वजह से नहीं होगा, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से नहीं होगा, इसकी वजह से होगा, तो वो फिर से और मुझे लगता है, आई मीन, एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन हो सकता है कि जैसे हमने किया कि ये क्यों है, मगर वो कभी भी जातिवाद या असमानता को ये नहीं मानना चाहते कि जातिगत सोच और जातिवाद की वजह से हो रहा है या भेदभाव की वजह से हो रहा है, और वो नहीं सोचना चाह रहे थे, इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाह रहे उसके बारे में. ये मेरे लिए थोड़ा सीखने का था कि इतना ज़्यादा है, like this urgent need to deflect it and say that no, this is not this is something else. And so I think it comes from this not wanting to confront what is going on within our own society, right? So we are willing to engage people, okay, fine, this may be because of these many things, but what we're not willing to engage is just rule out the role of caste and caste discrimination, right? Yeah. If I, sorry, can I? Yeah, no, I want to add this. Aditi ने पिछले पूछा था कि आदिवासी लोग, दलित लोग की, और उन आदिवासी लोग जो जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा कम है ऊंची जाति के लोगों से, तो जैसे कि हमें पता है, और जैसे कि अदिति हिंट भी करी थी कि कुछ समानता है इन दोनों के शोषण में और कुछ फर्क भी है. तो समानता ये है कि मुझे लगता कि
आदिवासी लोगों के बारे में भी जो हमारी नेशनल कॉन्वर्सेशन है वो बहुत कम सोचती है, उनके मुद्दों के बारे में बहुत कम सोचती है, और ये दलित लोगों के बारे में भी था। हालांकि इस समय मुझे लगता है कि एक हमारे देश में एक नेशनल कॉन्वर्सेशन चल रहा है कास्ट के बारे में। दलित लोग अपना पक्ष रख पा रहे हैं पहले की तुलना में ज़्यादा। जैसे मैं जब कॉलेज में था तो कास्ट पर भी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं था, मगर अब कास्ट पे थोड़ा कॉन्वर्सेशन है नेशनली। मगर हम सोचें कि आदिवासी लोग कितना अपना पक्ष रख पा रहे हैं अखबारों में या मीडिया में, तो वो बहुत कम है। और उस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि कुछ हद तक कुछ आदिवासी लोग तो मेरे ख्याल से आदिवासी लोगों के लोगों में थोड़ा फ़र्क है। तो कुछ आदिवासी लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, उनके अलग मुद्दे हैं कुछ हद तक, और कुछ जो सेंट्रल इंडिया में रहते हैं उनके अलग मुद्दे हैं, और जो बाकी राज्यों में आदिवासी उन थोड़ा उसमें भी फ़र्क है। कुछ आदिवासी लोग जो कि कास्ट विलेजेस में रहते हैं, जहाँ पे दूसरी ऊंची जाति के लोग भी हैं, वो बेसिकली एक तरह से शोषित कास्ट हैं इस समय। और कुछ आदिवासी लोग जो मान लीजिए झारखंड के या छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के आदिवासी गांव में रहते हैं, उनके बारे में जिला स्तर पर कोई कुछ नहीं सोचता है। ये बात भी ये भी काफ़ी आसानी से देख सकते हैं। तो उन आदिवासी लोगों के लिए आई थिंक जोग्राफिकल जो डिस्पैरिटी है, और जोग्राफिकल डिस्पैरिटी मतलब कि वो सब एक साथ रह रहे हैं और उनके बारे में सरकार कुछ करने का सोचती नहीं है। कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देगी, कोई स्कूल नहीं बनेगी, उनको बहुत परेशानियां होती हैं कुछ भी एक्सेस करने में, वो काफ़ी ज़रूरी हैं। और बाकी लोगों के लिए कुछ हद तक मुद्दे समान भी हैं। दूसरी बात ये बोलूँगा कि अगर हम उन राज्यों के बारे में सोचें जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, कुछ हद तक उड़ीसा या पूर्वोत्तर के राज्य, कुछ हद तक हम उन राज्यों के बारे में भी नहीं सोचते नेशनली, क्योंकि वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। क्योंकि हमने उन राज्यों में ही सोचे यहाँ पे इस तरह के लोग रहते हैं, हम इनके बारे में क्यों सोचें। तो अगर आप मुद्दे देखें कहाँ आगे आते हैं, दिल्ली मुंबई के आते हैं पार्टली, और झारखंड से नहीं आते पार्टली इसलिए नहीं आते क्योंकि वहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनके बारे में हम सोचना नहीं चाहते। आशीष और पायल, आपको कितना टाइम लगा था आपके पेपर्स को फील्ड वर्क कर करके फाइनली एक कंक्लूजन तक ले जाने में? तो हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि एनुअल हेल्थ सर्वे और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सरकार ने फील्ड वर्क किया था और डेटा सरकार ने कलेक्ट किया था। एनुअल हेल्थ सर्वे हम ओवर टाइम और भी चीज़ें करते थे और एनुअल हेल्थ सर्वे पे भी काम करते थे, तो या फिर NFHS पर भी। तो ये दोनों पेपर्स के बारे में बात करना 2015-16 में चालू हुआ था और अब वो जाकर छपे हैं, तो 6-7 साल। हाँ। ग्रेट। आई थिंक आपका पेपर जो यूएस में कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, especially we are also seeing some academic universities also to putting in caste as a caste discrimination is also not acceptable. So I think this will also shape some conversation. In your paper is also a very great contribution in that reference, because this is now a very recent evidence that you guys have collected, and so yeah, that is one thing that came into my mind overall when I was reading through this paper, that it will add a lot of value in that sense also, क्योंकि यूएस में भी जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जो स्पेशली अपर कास्ट से आ रहे हैं, वो इस मुद्दे को लेकर अगेन सेम डिनाइल में ही है। ये भी है कि यूएस में भी जातिगत भेदभाव होता है। तो उदाहरण के लिए आप न्यूयॉर्क जाओगे तो आपको गुरुद्वारे कई बार अलग अलग जातियों के अलग अलग गुरुद्वारे भी मिल जाएंगे। बाकी हिंदुओं में भी काफ़ी जातिगत असमानता है। और एक ये है कि क्योंकि जो लोग भारत से गए हैं वो ज़्यादातर अपर कास्ट हैं, तो यूएस में जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लोग हैं, हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं,
तब भी उनकी क्षमता अपने मुद्दों को आगे रखने में अभी भी काफ़ी कम है। जी Yeah, and I think this question that I've gotten so much of, like, oh, it's just 3-4 years difference, like what's the big deal? I mean, I think that also comes from a place of this privilege that, like, these are groups that we don't think of generally there. And so, most of these conversations are with people who are here in the US and who are largely upper caste. And so I think, yeah, like all of the things that we've been talking about, that these are groups that are not thought of, they're not considered, like, so what if they have 3 years difference? It's not such a big deal. Well, what if that was your group? That would you think about it differently, maybe? So anyway, yeah, I think you're right that it does. Hopefully, it will also have some impact here in terms of how people think about caste in the U.S. context, also. So, Ashish, Payal, thank you so much for coming on लाइट्स कैमरा आजादी. बहुत ही अच्छी कॉन्वर्जेशन थी. बहुत ज़रूरी मुद्दों पे आप लोग काम कर रहे हैं, and I would like to congratulate you once again for pulling this amazing research out, which is a massive contribution in the overall Indian development and also the anti-caste movement. So thank you so much for doing it, and also special thanks to Aditi for arranging this conversation and also being a fantastic co-host. I think this was very amazing of you, Aditi, to do this for all of us. Thank you so much, all of you, for being on Lights Camera Azadi. Thank you so much. Thank you for having us. Thanks, Aditi. Thanks, Vandit, for organizing. Thanks so much. Thank you, Vandit. Bye. Thank you so much, Pandit, Aashish, and Payal. We look forward to having more conversation on similar lines.